Good afternoon, class. Let us discuss the DPPs first. Tell me what are your doubts in DPP 11? Question 1 to question 5. So question number 1. Question number 1. Okay. It's given that function f is from R to R. Fx is x square plus 3. And the question is pre-image. See, you know what are image and pre-image. Pre-image of 2 under f. What is the meaning of this? Actually, you are supposed to find pre-image, right? That means 2 is present here. And pre-image means that you have to find this value. And both of them are set of all real numbers. It is given in the question. So you have to find this value, question mark, so that you get 2 in the as the output or the range. So answer will be 5. Why? Because this function f is related from R to R and you want the value 2. So actually this value 2 corresponds to the value of the function and you have to find the value of x here. So this is not possible in this question as domain is set of real number. Pre-image come from domain only. Okay, so this is the meaning. Now till question 5. Any other doubt? Please speak up and ask. So question number 4. Question number 4, inverse. See, here they are asking you to find the inverse and in all the 4 options some answer is given. That means you need not to bother yourself with this 1 1 and onto. Otherwise also nothing is given. No condition, no domain is given, codomain is not given. So obviously you won't be able to find 1 1 onto and that is not required also. Why? Because in all the 4 options some answer is given. So just concentrate on finding the inverse. So what we will do? Given fx equals this. Okay, you have to find inverse, put it equal to y, and now the task is to convert x in terms of y. Okay, so we shift 2 on the other side and write it like this. Okay, the task is to change or write x in terms of y. So if there is nothing here, I can write 1. And if you remember, I have taught you one property called componendo and dividendo. Componendo and dividendo, what is that property? If a upon b equals c by d, which is happening here right now, this is that type of equation, then we can also write this. This is the result of componendo and dividend. So when we will use this, that means you have to subtract in the numerator, you have to subtract 1 from y minus 2, and in the denominator you have to add both of them. That means y minus 2 plus 1. Correct?
I'm using this property which is written here, fine. Then similarly, subtract this denominator from numerator here. Let me do this here. I'm subtracting this. So what do you observe? This e to the power x gets cancelled and minus e to the power minus x comes 2 times. Similarly, in denominator you have to add both of them. So 2ex will come. Okay. So I didn't understand. Could you explain this step again? Componendo So how? and dividend. Componendo and dividendo is not something that I am telling you for the first time. In trigonometry, we have used it so many times. This is the result. And this form is a by b equals c by d. That means in place of a we have y minus 2, in place of b we have 1, in place of c we have e to the power x minus e to the power minus x, and in place of d we have this expression. Now if this is the situation, then there's this identity or property of ratio that we can write a minus b upon a plus b is equal to c minus d upon c plus d. What is a? A is y minus 2. What is b? B is 1. So when you write a minus b, that means y minus 2 minus 1, which is y minus 3. When you write a plus b, which means addition of these two, that means y minus 1. That is what I have written. And same thing I am applying on the right hand side. Is it clear now? Okay, sir. Understood. Property, remember this component and dividend. We have used this earlier also, not for the first time. Anyways, now we we will cancel 2 from numerator and denominator. Okay, and this e to the power x can be taken like this using property of exponent, because this will go in numerator with negative power, right? Now you can multiply both sides by minus 1, and finally at this step now you need to take log on the base of e, because you have to bring this x, you have to express x in terms of y. So this comes out to be log of base e 3 minus y minus 1 minus 2x. And what happens to the remaining term? Okay, let me write one more step. Log e base e. Log e base e is 1, and then you bring minus 1 by 2 on the other side, and this is your x. Log e base e is 1 and minus 1 by 2 you have taken on the other side. So what I told you that you have to express x in terms of y. Once you do that, you replace, right? Replace x by y and y by x. Why? Because all the answers are in terms of x. Replace x by y and y by x. So in the right hand side it will be this, and in the right hand side it will be y, correct? So y equals minus 1 by 2, this will be the answer. If you look at the options, okay, if you look at the options, okay, they are not writing minus half here, they can take it in the power, they are taking it in the power. So what you can do, you can take this whole term minus half in the power, but now they are not even writing power as minus half, they are only taking power as half. So last step will be using exponent, you can change their positions, and now you can write power half. In place of 3 minus x upon x minus 1, I have taken x minus 1 upon 3 minus x, and because of that power will become 1 by 2. So I think D will be the option. D is the option. These are the steps. Anyone having any doubt, please ask. What is the whole question? You are given y in terms of x. All these steps that I have used, the purpose is to write x in terms of y. Then few properties of log are used, and that's it. Anyone having any doubt in question number 4?
Okay, then till question number 8. Any doubt till question number 8? Till question number 8, any So doubt? question number Which one? 6. Sixth question. See, this 9th and 10th question, they are actually, though they are based on this inverse, 10th is not even based on inverse, but they are based on composite functions. Okay, that we will be discussing, that will be the end of the chapter. So by mistake these questions have come here, so we are supposed to solve only till question number 8. 9th and 10th you will be able to solve at the last. I am solving question number 6. Again same situation, just like the previous question. Fx is y. Now you have to express x in terms of y, correct? Okay, so the first step is this. What is this? This is how you remove log. See, if you have log a to the base b is equal to x and you have to get rid of log, what you do? This I have taught you. A comes out to be b to the power x. You remove log, take b to the other side and squaring both sides, because this x square is inside the root, that is why. So let us square it. And here you will get the answer. E to the power 2y minus 1 is this. See, inverse is unique and every time we are getting a single function, right? So that is not the problem. Now you can divide this e to the power y from this numerator. E to the power 2y upon e to the power y will be this. 1 upon e to the power y will be this. Upon 2 is equal to x. Now replace x by y and y by x. So this will be e to the power x minus e to the minus x by 2 is equal to y. That is your inverse. So this left hand side, because answers are in terms of x only, so C will be the option. Any other question from DPP 11 till question number 8? So question number 8. Question number 8. Okay. Again same situation. We have to find the inverse. Now I am writing fx as y only directly, and this is this cube, then 1 by 4. See, we are not at all bothering about 1 1 on 2 and all this, because nothing is given here. In 8th question, in 6th question, and in 4th question nothing was given. However, in 5th question domain and codomain are given, but again as you can see in all the 4 options a b c d, some function is given. There is nothing like does not exist, not defined, none of these. So we can avoid 1 1 on 2 and directly go for finding inverse. However, do not forget that in generally we have to find 1 1 on 2 both, because if they give the option none of these and they are giving domain and codomain, then you must check 1 1 on 2. This is very important. Okay, so in question 8 nothing is given, so we proceed to find the inverse. First of all, take power 5 both sides so that we can get rid of this fifth root. We have to find x in terms of y, so transpose these terms. Now take the cube root. All the questions are same.
x equals this. So you have expressed x in terms of y, correct? So now you replace and that will be the answer. So y equals 7 plus 4 minus x to the power 5 to the power 1 by 3. Seven plus 4 minus x to the power 5 to the power 1 by 3. Understood? Any doubt? Any doubt? Any other question in DPP 11? So can you solve the fifth question also? Okay. F is from 1 to infinity to 2 to infinity. And this function fx is this, okay? We need not to check 1 1 on 2 and all, because in all the 4 options some answer is given. Just express x in terms of y. And how you can do that? I have done a similar kind of question in class where you get a square in x. Like this, you write this equation, okay? And then you have to express x in terms of y. Use quadratic formula. Minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. Quadratic formula. So you are getting two values of x. One will be rejected. This is y plus under root this. And next one is this. Now tell me which one will be rejected, because inverse is unique. Next step you will get the answer. Which one will be rejected? What is the reason? इसमें अगर कोई रिजेक्ट करके बता सके तो मैं मान जाऊंगा कि आपने रिजेक्ट करना सीख लिया है, आपको समझ में आ गया कैसे चेक करते हैं. क्योंकि ये तो क्लियर है कि 1 1 ऑन 2 तो होगा ही इसमें, तभी इनवर्स के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं. देखिए इसमें एक काम करिए, सुनिए. चेक फॉर y इक्वल्स 3. x नहीं y. अगर मैं y 3 रखता हूँ इसमें, तो यहाँ पे 9 माइनस ये इतना आ जाएगा. ये जो x की वैल्यू आएगी ना, ये 1 से कम है, लेस देन 1, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि x की वैल्यू देखो यहाँ पर, डोमेन 1 से बड़ा है. क्या ये रिजेक्ट नहीं होगा? नहीं. ये वैल्यू कितनी आएगी? 3 प्लस रूट 5 बाई 2 ग्रेटर देन 1. इन्वर्स होता है यूनिक 3 पे. कोई बोलेगा 2 पे चेक क्यों नहीं करी थी? 2 से इन्फिनिटी में ये जो है अपना कोडोमेन, जो कि अब वो भी बन जाएगा रेंज 1 1 और 2 की वजह से. 2 पे चेक क्यों नहीं करी? क्योंकि 2 पे दोनों सेम आ रही हैं. 2 पे दोनों सेम आ रही हैं और 1 आ रही है. अब 2 y बराबर 2 रखोगे जब, अब 2 पे दोनों पे जब y इक्वल्स 2 दोनों में रख रहे हैं तो x 1 आएगा. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दोनों इन्वर्स हो जाएंगे. इन्वर्स तो यूनिक होता है, इसलिए फिर कोई और वैल्यू चेक करनी है तो मैंने इसमें इजी सी वैल्यू 3 रख ली. ये मैं किस में से रख रहा हूँ? 3 इसमें से, क्योंकि यही कोडोमेन है, यही रेंज है 1 1 ऑन 2. फिर से कह रहा हूँ, ठीक है. एक बार ये आ गया तो हो गया क्वेश्चन. फिर क्या करना है? वही रिप्लेस वाली बात. रिप्लेस एक्स वाई 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 बाई एक्स, क्या बन जाएगा? ये आंसर आ जाएगा. दिस इज द आंसर. So second will be the answer. Oh sorry, first option. और कोई डाउट है? Any other doubt in this? 9 10th नहीं करना है इसमें से, वो लास्ट में करेंगे कंपोजिट फंक्शन में. और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2. इसमें से किसका इन्वर्स होगा?
वो नहीं देख पा रहे, 1 1 on 2 किसका इन्वर्स होगा, मतलब 1 1 on 2 कौन सा होगा, 1 1 on 2 चेक करो, ए ऑप्शन। 1 1 on 2 नहीं होगा, इसका तो नहीं होगा। और दूसरी बात, इसमें ए के बारे में दे नहीं रखा है, तो दोनों ग्राफ्स पॉसिबल हैं, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी, क्योंकि ए जो बेस है वो 1 से बड़ा होगा तो पहला बनेगा, 1 से छोटा होगा तो ऐसा बनेगा। ग्राफ पूरा क्यों बनेगा, क्योंकि डोमेन आर है। कौन बताएगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, हु विल टेल मी। चाहे कोई सा भी ग्राफ हो, और कोई सा भी ग्राफ क्यों है, क्योंकि ए के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। 1 से बड़ा होगा तो पहला, 1 से छोटा होगा तो दूसरा, बट डजेंट मैटर, इनवर्स वोंट एग्जिस्ट, हु विल टेल मी। So range is not equal to codomain. करेक्ट आंसर, गुड। ये देखो, इसमें रेंज क्या है अपनी, दोनों में से कोई सा भी उठा लो, इसकी रेंज तो सभी जानते हैं, 0 से इन्फिनिटी है, यानी लेस देन कोडोमेन। इनटू फंक्शन है, होना क्या चाहिए 1 1 on 2, इसीलिए ए ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे चेक करना है कौन सा होगा। फिर जैसे एक ये वाला है, सी वाला है, R0 से R+, और फंक्शन दे रखा है mod x। ग्राफ अपने मन से नहीं बनाना है, वो बनाना है जो दे रखा है। तो अब ये है जैसे R0 के बारे में बता चुका हूँ आपको, याद आ रहा होगा। R0 होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है वो हर जगह बनेगा 0 के अलावा। वैसे इसका ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन ग्राफ इसमें ऐसे बनाना है बिकॉज ऑफ दिस डोमेन। हु विल टेल मी, इज इट इन्वर्टेबल और नॉट, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? No, sir. नहीं करेगा, वाई, बिकॉज इट इज -1 and 1 have the same value. या मैनी वन ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व दैट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब इसमें पता है क्या हो रहा है, वो तो बन रहा ही है ऑन टू क्यों बन रहा है, क्योंकि अब ओरिजिन तो हो नहीं सकता, 0 तो हाइट हो नहीं सकती है, हाइट एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगी, मतलब जो रेंज है R+ ही है, कोडोमेन भी R+ है। लेकिन इस बार मैनी वन की वजह से गड़बड़ हो गई, इन्वर्स होने के लिए 1 1 on 2 होना चाहिए। ए ऑप्शन चला गया, सी ऑप्शन चला गया, अब डी चेक कर लेते हैं। डी, तुम कहोगे बी क्यों स्किप कर दिया, क्योंकि बी में 2 फंक्शंस का प्लस है ना, और बाकी सारे स्टैंडर्ड फंक्शन हैं। अगर मान लो ए सी डी में से आंसर आ गया तो मैं बी चेक करके टाइम वेस्ट क्यों करूँगा, और मान लो अगर ए सी डी तीनों ही रिजेक्ट हो गए तो ऑब्वियसली बी आंसर आ जाएगा, फिर भी टाइम क्यों वेस्ट करूँगा। तो ऐसे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन शार्प रखते हुए आप अपना टाइम बचा सकते हैं पेपर में। ये दे रखा है और एफ एक्स दे रखा है कॉस एक्स, यानी अब जो आपको कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है ना, वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दोगे अपनी मर्जी से, डोमेन में बनाना है। ये देखो, यानी आपको ग्राफ बनाना है पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में जिसको ग्राफ याद हैं, वैसे मैं चलो पूरा बना देता हूँ फिर हटा दूँगा। कुछ ऐसे आता है ग्राफ अगर कॉस का याद हो, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जो चाहिए वो मैं हटा रहा हूँ, इतना चाहिए आप। ठीक है, इतना चाहिए, और पाई पे वैल्यू -1 होती है और इस पर वैल्यू 1 होती है। बताओ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? इन्वर्स एग्जिस्ट, yes anyone, inverse will exist or not? So it will exist. You can use the Yes. horizontal line test. yes 1 1 on 2, क्योंकि देखो रेंज तो यहीं से दिख रही है, अगर किसी को रेड ग्राफ पे मूव करेगा तो -1 से 1 जा पाएगा, कोडोमेन भी वही है, करेक्ट। और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो एक ही जगह कट करेगा, इसीलिए 1 1 on 2 है, मतलब डी ऑप्शन हो गया। अब डी हो गया तो बी नहीं होगा। वैसे अगर बी को करना होता तो डिफाइन करके उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब पता चलेगा। कोई बोले कि और आसान तरीका है बी को हटाने का, तो और भी आसान तरीका है, ऐसा नहीं है कि पूरा डिफाइन करके ही हट पाएगा।
क्योंकि ये जो है इसमें ना FR2R दे रखा है, ठीक है ना, FR2R। बहुत आसानी से इसको मैनी वन प्रूव कर दूंगा। 0 पर वैल्यू निकालो, 0 पर वैल्यू 1 आएगी, अब 1 पे निकाल लो, फिर भी 1 ही आएगी, मैनी 1 हो गया, ख़त्म सवाल। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर तो वैसे पहले ही आ गया था, तो आपको मैंने एक्सप्लेन करने की वजह से बताया। ठीक है, तो ये तो हो ही गई DPP। ओके, DPP 12। DPP 12 में क्वेश्चन, पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है 2, 4, 5, 6, इसमें किसी में डाउट? टू, 4, 5, 6, DPP 12, any doubt in any of these parts? चारों में किसी में डाउट नहीं है? 2, 4, 5, 6। Be louder. Which one? So the fifth one. You are not audible. So the fifth one. Fifth one. Okay. फिफ्थ वन डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको बस पहचानना है तो स्टैंडर्ड फंक्शन पहचानना है, 2 से कोई मतलब नहीं है, जो भी है वो 1/3 से। ये 1/3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब cos x का पीरियड कितना होता है, बस वहाँ से हो जाएगा। cos x का पीरियड होता है 2π, है ना। वो स्टैंडर्ड फंक्शन की जो लिस्ट थी वहाँ से आप देख सकते हैं, उसमें लिखवाया था कि cos nx sin, ये वाले जो हैं इसमें अगर पावर ऑड होती है तो 2π होता है। अब n को अगर 1 रख दूंगा तो cos बन जाएगा, इसलिए therefore पीरियड ऑफ दिस, इसका मतलब क्या होगा, वही t/mod सिखाया था ये x का कोफिशिएंट 1/3 है तो 6π विल बी द आंसर। इतना सा करना था। क्योंकि बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर क्या माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ x का कोफिशिएंट चाहिए होता है। So question 4. क्वेश्चन नंबर 4। 4. फोर्थ क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉग होने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि कॉस पीरियडिक होता है। अब कोई बोले कि किस तरह का फंक्शन है, मैं इसको लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक, पहला वाला जो है, तो ना ये लॉगरिथमिक है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये है कॉम्पोजिट फंक्शन। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। कॉम्पोजिट क्या होता है? कॉम्पोजिशन,
कॉम्पोजिट कम्स फ्रॉम कॉम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन। ऐसे दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस के कॉम्पोजिशन से जो बनता है उसको कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शन पीरियडिक हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन क्योंकि कॉस जो है अंदर है, इट इज़ लॉग ऑफ कॉस, तो दैट इज़ वाई इट विल बी पीरियडिक। तो लॉग का तो कुछ रोल होता नहीं है पीरियडिक में, इसी का होता है जो भी होता है। तो सबसे पहले अगर इसका पीरियड निकालना तुम, तो वो हो जाएगा 2π/2, क्योंकि देखो चाहे तो cos x की बात कर लो या log cos x की बात कर लो, 2π पीरियड ही आएगा, log विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। ओके, तो फिर cos 2x का पीरियड कैसे निकालेंगे, वो ty mod a से कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और इसका पीरियड निकालेंगे तो अब तुम जानते हो कि 10x का पीरियड पाई होता है, तो इसका पीरियड π/4 हो जाएगा, एज पीरियड ऑफ 10x इज पाई। ठीक है, ये अब मैंने बताया था वो लास्ट वाला जो पॉइंट लिखवाया था, इसमें मैंने लास्ट में क्वेश्चन करवाए थे कि अगर इवन फंक्शन है तब तो हाफ एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, और अगर नहीं है तो हाफ ऑफ दूसरी, दो ही तो ब्रांचेज हैं, है ना, दूसरी ब्रांचेज हैं। लेकिन दूसरी ब्रांच में मैंने एक बात और बताई थी आपको, मैंने आपको दूसरी ब्रांच में क्या बताई थी कि हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ T1 T2 इफ़ दे आर कंपेरेबल, इफ़ दे आर पेयर वाइज कंपेरेबल। तो मैंने आपको बताया था कि मतलब 90 माइनस थीटा साइन कॉस में बदल जाता है इस तरीके से। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि ये दूसरा वाला जो है इसमें बदल जाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि tan 4x log cos 2x में बदल जाए। ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी कि log आ जाएगा अपने आप, या log cos 2x tan 4x में बदल जाएगा, नहीं बदल पाएगा। तो फिर इसमें आपको कैसे निकालना होगा, पीरियड एलसीएम करके निकालना है, एलसीएम ऑफ, अच्छा इसमें क्या है कि पहले फंक्शन का भी पाई है और इसका भी पाई है, एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई, तो पाई इसका पीरियड हो गया। अच्छा तुम अगर ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन अगर तुम देखते हो तो कौन सा क्वेश्चन था ये, फोर्थ क्वेश्चन, हाँ, इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपको मिलेंगे π/2, 2π, पाई और 2π/5, है ना। मैं आपको पहले पाई पे रख के दिखाता हूँ, तो उसके लिए क्या करना होता है, f(x + t = f(x), ऐसे बदल के देखो, तो फंक्शन में रख दो यहाँ पे, ये रख दिया मैंने, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, रिडक्शन फार्मूला वैसे समझ में आ जाएगा, 2x + 2π को ऐसे लिख लेना, 2π आगे 2x बाद में, ऐसे ही इसमें 4π + 4x। अब सभी जानते हैं कि 2π और 4π ना इवन मल्टीपल है, और cos 2x ही क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ये 360+। सेम सिचुएशन इसमें आएगी, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बनेगा, तो क्या हुआ, ये तो सेम आ गया, इसलिए पीरियड हो गया पाई। कोई बोलेगा वो हाफ वाला चक्कर अगर बन जाए, if someone is confused about half of that, तो you can check it π/2, π/2 पे चेक करोगे आंसर नहीं आएगा, क्यों, देखो अगर तुम π/2 चेक करते हो तो क्या हो जाएगा, पहले टर्म गड़बड़ कर देगा, दूसरे तक तो जा ही नहीं पाओगे। ये गड़बड़ कैसे कर देगा, बिकॉज ये इसको बदल देगा, x + π/2 लिख रहा हूँ, है ना, तो ये इसको log cos, ये हो जाएगा पाई + 2x, और ये कितना हो जाएगा tan 2π + 4x, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट दिस, cos 180 + थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो log ऑफ माइनस cos 2x आएगा, तो क्या फंक्शन सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसलिए भी नहीं होगा। वैसे पहले ही पता चल गया था कि इंटरचेंजेबल पेयर वाइज कंपेरेबल फंक्शन नहीं है, तो उसमें वहाँ तक जाने का कोई पर्पज़ नहीं है। सो ओनली व्हेन द फंक्शंस आर पेयर वाइज कंपेरेबल वी टेक हाफ T1 T2, तो वो तुम्हें ना सवाल करते करते समझ में आने लग जाएगा। साइन कॉस देखे किसी सवाल में, टेन कॉट देखे, सेक कॉसेक देखे, ऐसे आपस में बदल जाने वाले दिखेंगे, तो वहाँ सोचना पड़ेगा। Sir, यस, screen is getting very light. या आई विल चेंज इट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 1 3 एक बार मैं लिख लेता हूँ, 2 4 6 लिख दिए थे मैं, 1 3, मैं तो सारे क्वेश्चन बेसिक से ही हैं। टू 4 5 6 इज डन, सो 1 3 7 8, इसमें डाउट बोलिए भाई, 1 3 7 8। Yes, 1 3 7 8, any doubt? Okay, then 9 10 11 12. 9 10 11 12. Please ask your doubt so that we can move to the next topic. So 11 and 12. 11 and 12. देखो एक बात और बता देता हूँ, लिसन। 9 and 10 also. लिसन, देखो 9th वाला तो रेंज का सवाल है, वैसे तो गलती से आ गया यहाँ पर, बट इसमें वैसे भी डोमेन आर दे रखा है, रेंज निकालनी तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 9th के लिए, तो डोमेन इज आर, डोमेन आर है आपका, और इसमें इसकी रेंज पूछ रहे हैं आपसे, क्या होगा? जस्ट ड्रॉ द ग्राफ, या फिर इसके लिए मैंने डायरेक्ट, मतलब मैंने ये बताया है कि इसका जो माउथ है अपवर्ड ओपन होगा, राइट, और कुछ तरीके बताए थे आपको। इसमें आपको बताया था कि सबसे पहले तो फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लेते हैं, तो पॉजिटिव है तो माउथ अपवर्ड, फिर डिस्क्रिमिनेंट आएगा इसका 30 से बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 8, मतलब पॉजिटिव, मतलब 2 जगह कट करेगा। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 7 होगी, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 7 होगी। एक वर्टेक्स बताया था आपको, उसी से आंसर आ जाता है। वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है -b/2 है, किससे कंपेयर करते हो? ax² + bx + c से, ठीक है। तो -b मतलब 6/2 है, 3, -d/4 है, यानी d कितना है ये, तो -2, बस यहीं से आंसर आ जाएगा। x पॉजिटिव y नेगेटिव, देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा, और ये वर्टेक्स ही बता देगा कि रेंज का आंसर क्या है। इस ग्राफ को देख के कौन बता सकता है रेंज? व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? So -2 to infinity. बिल्कुल, दिस इज द आंसर, बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है उसकी हाइट कितनी है? -2। ग्राफ पे मूव करो तो -2 से नीचे नहीं आएगा ग्राफ का भी, हाइट मतलब y कोऑर्डिनेट, और मैक्सिमम कितना जा सकता है? यस। So we can't solve it in any other using the other methods. Graphical, as I am saying again and again, that graphical method is the best, otherwise you can use completing the square, x -3 होल स्क्वायर -2, यहाँ से भी आ जाएगा। सो नाउ हाउ यू विल सॉल्व? अगर इससे करना है तो ग्राफ से नहीं करना है, मेथड 2 से करना है, तो ये तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया, आप बोलोगे कि x कहाँ से कहाँ तक है? x इज दिस, ये गिवन है, r है x, है ना, इसमें सब में से 3 घटा दो,
सब में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो लेफ्ट राइट में क्या फ़र्क पड़ेगा, इन्फिनिटी है। अब इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ये आएगा। अगर आप आज भी स्क्वायर करते में इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखते हैं तो आपको इनइक्वालिटी रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि x माइनस 3 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, मतलब उसकी वैल्यू 0 भी होगी, और स्क्वायर की वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होती है, ना कि इन्फिनिटी से होगी, है ना। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम ईच, सब में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। इन्फिनिटी में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ये आ गया आंसर, दिस इज़ वाई। फिर से वही आंसर आ रहा है। ग्राफ से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक्चुअल में रेंज का क्वेश्चन आ गया, ये मैंने कुछ और दिया होगा, गलती से टाइप हो गया, बट स्टिल नो प्रॉब्लम, इट इज़ रिलेटेड टू चैप्टर ओनली। वैसे भी मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको डीपीपी टॉपिक की दी जाए, तो इसीलिए आपको कभी पीरियडिक फंक्शन के मिल रहे हैं, पिछले में पूरे इन्वर्स के क्वेश्चन थे। बट व्हेन यू विल सॉल्व सम मॉड्यूल और समथिंग यू विल गेट अ मिक्सड ऑफ क्वेश्चंस, कोई भी सवाल कहीं से भी हो सकता है। तो इसीलिए रोज़ाना डीपीपी करना बेटर रहता है, बिकॉज यू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज टू डू। अब 10th 11th और 12th, देखिए मैंने आपको ये बताया था कि पीरियडिक फंक्शन में ये जो लीस्ट वाली बात बताई थी, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो वो भी हेल्प कर देता है आंसर लाने में। ज़रूरी नहीं है कि आप ढूंढते रहें कि एलसीएम से निकालें, कैसे निकालें, क्या करें। फॉर एग्जांपल 10th क्वेश्चन को देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें फंक्शन क्या दे रखा है आपको, साइन 3 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ भाई, तो 10th क्वेश्चन में मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है ना, साइन 3 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये पूरा एंगल ही है इसका, ये इसका एंगल है, ठीक है। और फिर 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें पीरियड पूछा है मेरे से, और ये पीरियडिक फंक्शन तो है क्योंकि सभी में ऑप्शन दे रखे हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप सबसे पहले कौन सी वैल्यू चेक करना चाहोगे, अगर चेक करने को आपसे कहा जाए तो विच वैल्यू यू विल चेक। इसमें ऑप्शन है ना 1 2 3 एंड पाई, सो विच वैल्यू यू विल चेक फर्स्ट। So 1. Yes, obviously 1. Why? Because what is function period is the least positive value. तो अगर आप ये शो कर पाओ कि एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर आप ये शो कर पाओ तो हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 रखते हैं, साइन 3 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1, और यहाँ पर 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1। अब इसमें लगेंगी फंक्शन की प्रॉपर्टी, ध्यान से देखना। देखो पहले वाला जो है वो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही बन जाएगा, रीज़न एक्स प्लस इंटीजर बताया था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही हो जाता है। पहला पार्ट तो सेम आ गया।
दूसरा और सेम आ गया तो हो जाएगा अपना। इसको लिखोगे 10 पाई, इसको लिख देना बॉक्स x प्लस 1 ऐसे। ये कैसे लिख दिया, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर x के साथ कुछ जुड़ता है या सब्ट्रैक्ट होता है और वो इंटीजर है तो वो इंटीजर बाहर आ जाता था। ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ की। तो बाहर तो किसके आएगा, बॉक्स के बाहर आएगा ना, लेकिन मल्टीप्लाई तो पाई से होना ही है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, साइन 3 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 10 पाई का बॉक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, तो इसको लिख लो पाई प्लस पाई बॉक्स x। और ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये तो थीटा की तरह बिहेव कर रहा है। दिस इज बिहेविंग एज थीटा, करेक्ट। और थीटा की तरह बिहेव करने की वजह से क्या होगा, ये बन जाएगा, यानी ये तो एफ एक्स ही आ गया। लास्ट स्टेप में क्या यूज़ किया मैंने, tan 180 प्लस थीटा कितना होता है, tan थीटा। पाई 180 तो होता है, तो इसीलिए tan पाई प्लस थीटा का काम कौन कर रहा है, पाई बॉक्स, तो पाई बॉक्स ही आंसर आ जाएगा। ये चीज़ सेम नहीं आ गई, सेम आ गया, इसलिए फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा। 2, 3 और पाई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में ये बेनिफिट होता है आपको। और देखो बोर्ड में तो है नहीं है पीरियडिक फंक्शन, ये तो जेई मेन या इसी में ही है आईआईटी में, तो वहाँ ऑप्शन दे रखे होंगे। इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो ऑप्शन की हेल्प से हो पाएगा, वैसे तो बहुत दिक्कत होगी इसको निकालना। दिस वाज 10th। अब देखिए, पहले मैं 12th क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 12th क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है कॉस ऑफ साइन एक्स। वैसे साइन अपने आप में ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, लेकिन वो जो साइन एक्स है वो कॉस का एंगल है ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन कहलाते हैं। अब देखो इसमें पूछ रहा है आपसे कि पीरियड क्या होगा, तो ऑप्शन देखिए π/3, π/6, पाई और π/2। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो। कॉस और साइन के बारे में मैं आपको पीरियडिक फंक्शन में बार बार कुछ बात बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार आपसे कुछ बात बोल रहा हूँ कॉस और साइन के बारे में, टेन और कॉट के बारे में, है ना। और मैंने आपसे ये कहा कि पीरियडिक फंक्शन जो है वो देखने के लिए आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, सो यू कैन स्टार्ट विद द लीस्ट वैल्यू। और मैंने आपको साइन और कॉस के बारे में भी कुछ बता रखा है, उस बेसिस पे आप कौन सा ऑप्शन चेक करना चाहोगे सबसे पहले। विच ऑप्शन यू विल चेक। π/2। बिल्कुल सही है, एकदम सही अप्रोच है π/2। देखो π/3 और π/6, देखो पाई से पहले π/2 चेक करो, चलो एक बार चेक करते हैं। ये रख दिया, और यहाँ पर cos x प्लस π/2। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। नाउ लेट अस यूज ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो पहला वाला पार्ट है ये साइन 90 प्लस थीटा, याद करो ट्रिग्नोमेट्री, बार बार कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, रिडक्शन फार्मूला। और cos ऑफ 90 प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ये सिंपल ब्रैकेट्स हैं, बॉक्स वगैरह नहीं है पूरे सवाल में। cos 90 प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो ऐसा लग रहा है कि सेम नहीं आया, लेकिन सेम ही आएगा, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा। ये लो, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल। और देखो इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज का मतलब समझ में आ रहा होगा, ये जो इधर था ना अब इधर आ चुका है, और जो पहले था वो इधर आ चुका है, मतलब आपस में बदल गए और फंक्शन सेम आ गया।
दैट इज़ वाई पाई बाई टू इज़ द पीरियड। अब कोई कहेगा कि भाई पाई बाई टू आ गया तो पाई चेक करूँगा, पाई क्यों चेक करोगे, स्मॉलर होता है ना, तो अगर पाई बाई टू आ रहा है तो पाई तो वैसे ही चेक नहीं करना है। अब कोई बोलेगा लेकिन ये तो इससे छोटे हैं ना 30 और 60, ए और बी ऑप्शन में। तो एक बात बताओ, यहाँ पर इस स्टेप पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 30 या 60 लिखता हूँ या यहाँ पर 30 और 60 लिखता हूँ तो क्या वो चेंज होंगे? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कि साइन 60 प्लस एक्स कॉस एक्स बन जाए? ऐसा कुछ, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या 30 पे चेंज होगा कि नहीं? तो देखो ये जो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है ना, या जिन्होंने समझी है रिवाइज की, उनको तुरंत पिक कर लेंगे कि भाई 30 और 60 तो वैसे भी नहीं हो सकते। अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री में जिसको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है उसको दिक्कत आएगी थोड़ी सी यहाँ पे। सो दैट इज़ वाई पाई बाई टू इज़ द आंसर। तो हर क्वेश्चन हर मेथड से वो ज़रूरी नहीं है। जब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाते हैं वो, तो फिर वो उसको ऑप्शन के थ्रू आपसे करवाना चाहेंगे पीरियडिक फंक्शन में। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले सवाल होते हैं पर्टिकुलरली, वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से ही होते हैं। कुछ में सब्जेक्टिव अप्रोच लग पाती है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अभी आप इसको एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स से करोगे, वहाँ से भी आ जाएगा, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और इतना टाइम होता नहीं है, टाइम भी तो बचाना है पेपर में। So this was question number 12. अब लास्ट में आ जाते हैं आखिरी सवाल पे, 11th पे। इसमें कुछ फंक्शन दे रखा है cos, अब ये कुछ ऐसे ही है जैसा ये वाला है, साइन एन एक्स अपॉन टेन एक्स बाई 3, और ये बोल रहे हैं कि इसका जो पीरियड है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल दिया है इन्होंने, और इसका पीरियड है 6 पाई। तो n की वैल्यू निकालो। अच्छा, दिस इज 10x बाई n। टेन एक्स बाई एन, ठीक है। ये तो देखो एक बात सुनो ध्यान से, डिनोमिनेटर वाला जो है ना पीरियड ऑफ दिस, ये तो आ ही जाएगा पीरियड ऑफ 10x बाई एन एस, क्योंकि आपको 10x का पीरियड पता है पाई, तो इसका पीरियड हो जाएगा ये n पाई हो जाएगा इसका पीरियड, ठीक है, n पाई। लेकिन अब इसमें दिक्कत आएगी, वो आएगी ऊपर वाले पार्ट में, कॉस साइन एन एक्स में। इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा एक तरीका पहले। देखिए ये कॉस साइन एन एक्स की बात हो रही है ना, कॉस साइन एन एक्स की बात हो रही है, ये कि इसका पीरियड क्या होगा, क्योंकि अगर इसका भी पीरियड आ गया फिर दोनों का एलसीएम लेके 6 पाई के बराबर देख लेंगे और वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इसमें एक बात देखो आप, जैसे मान लो कॉस साइन एक्स का पीरियड निकालना, कॉस साइन एक्स का पीरियड, ठीक है। तो कौन बताएगा मुझे कि साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? व्हाट इज़ पीरियड ऑफ साइन एक्स? सर 2 पाई। 2 पाई होता है, ठीक है। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। ये कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। तो लगेगा कि कॉस साइन एक्स का पीरियड भी 2 पाई होगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें 2 पाई की जगह पाई ले लेता हूँ, ठीक है, निकाला तो 2 पाई है, पर रख क्या रहा हूँ एफ एक्स में, एक्स प्लस पाई चेक कर रहा हूँ, ये अपना एफ एक्स है। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो होता क्या है कि ये आएगा अपने पास साइन 180 प्लस एक्स से माइनस साइन एक्स। तो देखने में लग रहा है कि भाई ये क्या कर देगा इसको, ये इसको एफ एक्स के बराबर नहीं आने देगा, लेकिन बाहर है कॉस, और उसकी प्रॉपर्टी होती है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो भले ही साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, पर इस पूरे फंक्शन का पीरियड पाई हो जाएगा, मतलब पहले ही।
अब कोई बोलेगा सर पाई बाई 2 भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे पाई बाई 2 रखोगे ना तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, और फंक्शन कॉस साइन एक्स दे रखा है, ना कि कॉस कॉस एक्स। तो इसमें मतलब पीरियड जो साइन एक्स का था उसका हाफ आया। तो एक काम करते हैं फिर, एक और निकाल के देखते हैं। अभी और एग्जांपल समझो पहले। जैसे ये मुझे बताओ साइन 2x का पीरियड कितना होगा, साइन 2x का पीरियड, व्हाट इज पीरियड ऑफ साइन 2x? So how did you get pi in the first example? First thing. इट इज़ हाफ भाई, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आपको ये पहचानना होगा कि पहले तो इंटरचेंजेबल नहीं हो जाता, दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। पेयर वाइज इंटरचेंजेबल कंपेरेबल वाली बात बताता हूँ। तो पाई 2 पाई तो पीरियड साइन एक्स का है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन क्या है, कॉस साइन एक्स। अब कॉस साइन एक्स में मैं अगर 2 पाई की जगह पाई रख रहा हूँ, एंगल को हाफ कर रहा हूँ, तो भी फंक्शन सेम आ जाता है। दैट मीन्स द पीरियड ऑफ दिस होल फंक्शन कॉस साइन एक्स, दैट मीन्स द पीरियड ऑफ दिस, so this means the period of the whole function cos sin x is pi. Now I am again explaining you with different value of n। यहाँ पर ये पहले मैंने n को 1 रखा, मैं 2 रख के दिखाता हूँ, अभी क्लियर होगा क्या बताना चाह रहा हूँ। पीरियड ऑफ साइन 2x कितना, व्हाट इज पीरियड ऑफ साइन 2x, कौन बताएगा साइन 2x का पीरियड? So pi. पाई होगा, ठीक है, पाई होगा। अब देखना मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने एफ एक्स लिया हुआ है, पैटर्न समझो, एक्स प्लस पाई बाई 2 रखता हूँ, है पाई, लेकिन मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, पाई बाई 2 हाफ कर रहा हूँ, कॉस साइन 2 और यहाँ पर एक्स प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पर ये बन जाएगा कॉस साइन 2x प्लस पाई। अब साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, 2x प्लस पाई मतलब 180 प्लस, माइनस आ जाएगा। तो लगेगा कि ये तो फंक्शन के बराबर नहीं आ रहा है, पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अगर आपको पहले और दूसरे एग्जाम्पल से कुछ बात समझ में आ रही है तो कौन मुझे इसका पीरियड बता सकता है, पीरियड ऑफ, पहले ये बताओ, ऐसा कर लेते हैं, पहले मुझे बताओ कि साइन एन एक्स का पीरियड कितना होगा, साइन एन एक्स का पीरियड Sir, 2 pi. 2 पाई बाई एन होगा। अब मुझे बताओ कॉस साइन एन एक्स का पीरियड कितना होगा, So Pi by. पाई बाई, पाई बाई, so I have a doubt. डाउट की बात नहीं है, वो यहीं से आएगा, इसी को तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले सुनो उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि साइन 2x का पीरियड, फर्स्ट एग्जांपल में देखो इधर, साइन x का पीरियड कितना, 2 पाई, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे का फंक्शन का पीरियड 2 पाई होना चाहिए, बट इट इज़ कॉस ऑफ दिस साइन x। सो अगर 2 पाई पे चेक करोगे तो आ जाएगा सेम। ये लो 2 पाई पे चेक करके दिखाता हूँ, सी दिस, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई cos sin x plus 2 pi. So this is cos sin 360, 2 पाई कितना होता है 360, तो आ जाएगा एफ एक्स के बराबर, अच्छी बात है। लेकिन इससे ये कैसे डिसाइड हो गया कि ये फंडामेंटल पीरियड है, तो इसीलिए 2 पाई की जगह पाई पे चेक कर रहे हैं। अब कोई बोलेगा यानी हाफ कर दिया मैंने 360 से 180, जब मैंने 180 लिया ना तो माइनस आ रहा था, लेकिन बाहर है कॉस, और कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो एफ एक्स आ गया। इसका मतलब 2 पाई से पहले पाई आ रहा है, तो हाफ करके देखा। मैंने क्या कहा, जिसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो पाई पे भी फंक्शन जो है सेम आ जा रहा है, तो 2 पाई से छोटा तो पाई है, इसका मतलब पाई फंडामेंटल पीरियड होगा। अब कोई बोलेगा सर पाई बाई 2 भी तो हो सकता था। अगर आप यहाँ पर जहाँ मैंने पाई रखा है, अगर आप पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स तो कॉस एक्स बना देगा, यानी ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये फंक्शन थोड़ी ना है, फंक्शन है कॉस साइन एक्स, इसका मतलब पाई आंसर रहेगा। मैंने इसी बात को दोबारा से आपको समझाया। अब साइन 2x लिया मैंने, जब मैंने साइन 2x लिया, मैंने आपसे पूछा इसका पीरियड कितना है साइन 2x का, आप लोगों ने कहा पाई। कैसे आता है, 2 पाई अपॉन 2 करके। फिर मैंने क्या कहा कि क्योंकि बाहर कॉस लग रहा है तो पाई से हाफ एंगल क्या है, पाई बाई 2, उस पर चेक करके देखो। उस पर चेक किया तो वाकई जो फंक्शन एफ एक्स था वही आ गया। तो इसका मतलब इस फंक्शन कॉस ऑफ साइन 2x का पीरियड पाई बाई 2 हो गया।
यानी जो भी साइन का पीरियड आ रहा है ना, इसमें ब्रैकेट में जो साइन लिखा है उसका जो पीरियड आ रहा है उसका हाफ पीरियड हो जा रहा है कॉस साइन एन एक्स का। तो अब मेरा अगर आपसे एक क्वेश्चन है कि कॉस ऑफ साइन एन एक्स का पीरियड क्या होगा, तो सबसे पहले तो साइन एन एक्स का पीरियड देखो। साइन एन एक्स का पीरियड होगा 2π/n, ठीक है। साइन एन एक्स का पीरियड होगा 2π/n, लेकिन इस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या होगा, π/n। अब बताओ किसको डाउट है, So व्हाट इज द whenever डाउट? sin x is within cos, we have यस, to half the period of sin x. वाई वी आर डूइंग सो, बिकॉज दे आर इंटरचेंजेबल, इंटरचेंज हो जा रहा है ना फंक्शन। देखो अल्टीमेटली व्हाट इज़ द पॉइंट। अब ये जो तुमने बोला कि कॉस के अंदर साइन है तो हाफ कर देंगे, ये तो प्रैक्टिस से ही आएंगी चीज़ें। चलो यहाँ पे तो ये है, कल को यहाँ पे सेक ऑफ कॉस एन एक्स हो सकता है, टेन ऑफ साइन एन एक्स हो सकता है। तो ऐसे कुछ कुछ वैल्यूज़ रख के आप देख सकते हो व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पस। पीरियडिक फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। मैं तो वो देख रहा हूँ, मैं कोई रिजल्ट याद नहीं कर रहा। वैसे आप चाहो तो आप कॉस साइन एन एक्स का याद रख सकते हो, यू कैन मेक इट अ नोट कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ना, देखो ये वाला, इसको आप याद कर लो अगर इतना ही अटक रहा है तो। बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे आया π/n, ठीक है। अब सुनो, अभी तो ये सिर्फ न्यूमरेटर का निकाला था, डिनोमिनेटर का पीरियड ये है, न्यूमरेटर का पीरियड ये है, और ऑब्वियसली ऊपर और नीचे वाले आपस में तो बदल नहीं जाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं, है ना। और मैंने आपको बताया था कि अगर दो नंबर्स का, सॉरी दो फंक्शंस का डिवीजन है तो उसका पीरियड भी एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 करके निकलता है। तो अब आप क्या लिखोगे, पीरियड ऑफ एफ एक्स इज एलसीएम ऑफ n पाई एंड π/n, ये। लेकिन पीरियड तो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, बट पीरियड इज 6π, पीरियड इज 6π। तो अब ये पूछा जा रहा है कि मतलब ये है कि इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम ऑफ n पाई एंड π/n इज 6π। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पीरियड निकाल लेते हैं और उनका एलसीएम लेते हैं तो पूरे फंक्शन का पीरियड आ जाता है, पर वो तो ऑलरेडी दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि n पाई और π/n का जो एलसीएम है वो 6π आना चाहिए इस क्वेश्चन में। सो व्हाट इज़ द फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n? तो अब तुम ही बता दो, कोई भी बता देगा देख के कि n की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आर 3, 2, 6 है कि एलसीएम 6π आ जाए, बताओ। What should be the value of n from these so that you can get LCM of those two as 6π? जैसे d नहीं हो सकता, पता है क्यों? क्योंकि d अगर n, ये n की वैल्यूज़ हैं, अगर तुम n की जगह 1 लेते हो तो पहले वाला भी पाई बन जाएगा, दूसरा वाला भी पाई बन जाएगा। एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई इज पाई, नॉट 6π। तो डी ऑप्शन गया, ठीक है। 2 नहीं हो सकता, n की जगह 2 रखो तो एक तो बनेगा 2π और एक बनेगा π/2। देखो अगर तुम्हें ऐसे देखने में दिक्कत होती है ना, इनको डिग्री में बदल लिया करो। ये 360 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब अगर थोड़ा बहुत भी बेसिक मैथ्स तो सभी जानते हैं कि 90 और 360, 90 और 360 का एलसीएम क्या होगा, 360 होगा। 360 मतलब 2π, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ऐसे ही ये भी नहीं आएगा, और ये तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। 6π का और π/6 का एलसीएम देखो, पहली वैल्यू 6π, दूसरी वैल्यू π/6, π/6 से कुल 30 डिग्री। अगर डिग्री में बदल लोगे तो देखने में आसानी रहेगी। और ये है 6 × 180, तो ये 30 तो पूरा इसमें इंक्लूडेड होता ही है ना। जैसे 2 और 4 है, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 आ जाता है, राइट। 2 इसमें इंक्लूडेड होता है। ऐसे 30 डिग्री है तो 30 दूसरा 6 × 180 है, तो 30 तो ऑलरेडी 180 में प्रेजेंट है ही, तो फिर एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा, मतलब 6π हो जाएगा। तो लास्ट में आपको n की जो वैल्यू है वो देख के पता करनी होगी कि किससे एलसीएम 6π आएगा। दिस इज़ द होल क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर है उसका पीरियड कितना होगा, π/n। ये मैंने रेड बॉक्स में बंद कर दिया है, इसको ध्यान रखिए। डिनोमिनेटर का तो आपने निकाल ही लिया था, t/mod a से।
फिर दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ये रेड में यूज़ किया हुआ है, दोनों का एलसीएम लोगे तो वही इसका पीरियड होगा, लेकिन पीरियड ऑलरेडी दे रखा है 6 पाई। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम 6 पाई होना चाहिए। तो एन की वैल्यू क्या सेलेक्ट की जाए? 6 विल बी द आंसर। अब इसमें अगर किसी को और भी कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट इन दिस पार्ट? देखो क्या होता है कि हाँ आपने थ्योरी पढ़ ली, मैंने एग्जांपल करा दिए, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो क्वेश्चन करके बनते हैं। और मैथ्स में क्या है, ज़्यादातर लोग क्वेश्चन करते नहीं हैं, वो सोचते हैं थ्योरी पढ़ लेंगे तो सब हो जाएगा। कुछ नहीं होता उससे। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे, और ऐसा थोड़ी ना थ्योरी पढ़ के अटकोगे नहीं, बहुत जगह अटकोगे, बहुत जगह दिक्कत आएगी। वो दिक्कत को ओवरकम करने का मेथड है प्रैक्टिस। ना तो कोई सीक्रेट है ना कोई सिरप है, ठीक है, प्रैक्टिस है। आप खूब क्वेश्चन करते रहते हो, ग्रेजुअली आपको समझ में आने लग जाता है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे वर्किंग करनी है, ये है मैथ्स और क्या है। तो डोंट थिंक कि पहली बार में ही 100% आ जाएगा, ऐसे नहीं करना है। ऐसे सोच के मैथ्स करोगे तो कभी मज़ा ही नहीं आएगा। अगर फर्स्ट टाइम में 50% भी आपको आ जाता है तो इट इज़ गुड। फिर 50 से 70, 70 से 80 ऐसे ले जाने की कोशिश करनी है। 100% कहना तो गलत होगा, 100% तो कोई भी नहीं जानता। तो विथ प्रैक्टिस, दैट इज़ वाई एम गिविंग यू द डीपीपी। और वही पॉइंट है कि हर दिन डीपीपी करनी है, देन ओनली इट विल सर्व द पर्पस। वरना पढ़ते चले जाओगे, साफ होता चला जाएगा पीछे से। एनी अदर डाउट इन दिस डीपीपी? एनी अदर डाउट? यस, वन एट अ टाइम। हाँ बोलिए। पहले वो पूछ लो जो क्वेश्चन नंबर बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7th। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। साइन पाई एक्स, 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई 2 प्लस कॉस 2 पाई एक्स। सबका एलसीएम निकालना होगा और फिर सबका पीरियड निकालना होगा और उनका एलसीएम लेना होगा। देखिए इसका पीरियड होगा 1, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है। तुम बोलोगे 2 भी तो है, 2 तो कांस्टेंट है, वो उस पर क्या करेगा? जो भी तुम यहाँ पर चेंज करोगे वो चेंजेस तो यहाँ पर होंगे ना। 2 तो जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा हर बार। तो इसका पीरियड है 1, ठीक है। फिर इसका पीरियड निकालोगे तो उसके लिए आपको क्या याद करना है कि भाई 2 पाई साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है ना। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। अब वो स्टैंडर्ड रिजल्ट वाली बात याद रखो। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इस पे आ जाओ। 3 से कोई मतलब नहीं है, एक्स बाई 2 में देखो इसका पीरियड कितना हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड होता है 1, इसका पीरियड हो जाएगा 1/x का कोफिशिएंट, यानी इसका पीरियड हो जाएगा 2। और लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पर, इसका पीरियड वही कॉस का कितना होता है? 2 पाई। तो इसका हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई, मतलब कितना? 1। तो एलसीएम ऑफ 2 2 1, 4 नंबर है ना, 1 2 3 4। बहुत ही आसान है, 2 इज़ द आंसर। अब कोई बोलेगा कि सर इसमें 1 भी दे रखा है, तो 1 पे चेक करें क्या? 2 से छोटा 1? तो मैं बोलूँगा कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज देखो सिर्फ यहीं से पता चल जाएगा। यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि देखो अगर 1 रख के देखोगे ना, अगर 1 रख के देखोगे, देखो ये रख के दिखा रहा हूँ। 1 रखने का मतलब कहाँ पर? x को x प्लस 1 से रिप्लेस करना, ये मतलब कह रहा हूँ मैं। तो ये ना माइनस के साथ आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। ये देखिए स्पेशली रिडक्शन फॉर्मूले सबसे ज़्यादा अभी इसमें क्रिएट होते हैं ये। तो क्या ये सेम आएगा? ये साइन पाई एक्स वाला तो माइनस का आ जाएगा, तो ये तो पीरियडिक फंक्शन 1 पे बनेगा भी नहीं। और वैसे एलसीएम में भी नहीं आ रहा था, और लीस्ट वाली बात से मैंने 1 पे चेक करने की कोशिश की तो आया नहीं, तो 2 ही आंसर रहेगा। There's no doubt. Any doubt in this? हाँ भाई और बोलिए, और किसको क्या दिक्कत है? एनी अदर डाउट? पूरी डीपीपी में कोई दिक्कत?
Any doubt in DPP 12? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए अच्छी बात है फिर। अब यहाँ पे मैं आपको टॉपिक तो आगे नहीं पढ़ाऊँगा बिकॉज ये फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट और ये भी लाइट होती जा रही है। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ देयर आर टू सेट्स A and B such that NA equals 4 and NB equals 5, then find first number of 1 functions from A to B, total number of functions from A to B, and third is total number of onto functions from A to B. ये देखिए एन ए एन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, और अभी हम लोग समझने के लिए ना इसमें ऐसे ले लेते हैं कि भाई ये ए है और ये बी है और एन ए में 4 एलिमेंट, एन ए इक्वल्स 4 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 4, तो मैं x1 x2 x3 और x4 ले लेता हूँ और यहाँ पर 5 हैं तो इनका नाम y1 y2 y3 y4 और y5 कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे। अब इसके बेसिस पे आपको ये 3 बातें निकालनी है। एक तो आपको ये बताना है कि ए से बी में कितने 1 फंक्शन होंगे, ठीक है। एक आपको बताना है कि ए से बी में टोटल फंक्शन कितने बना सकते हैं, एंड थर्ड इज टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ए से बी में कितने होंगे। तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, इसमें आप सबसे पहले ना सेकंड पार्ट टोटल फंक्शन, टोटल फंक्शंस में लिख के दिखा रहा हूँ। टोटल लिखा है 5 की पावर 4 है, तो आंसर कैसे आया, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? Any one of you, Davis, can you explain? Nigel, can you explain? Anyone else? ये 5 की पावर 4 कैसे आया होगा? Nigel, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखिए सुनिए, टोटल फंक्शन निकालने के लिए टोटल फंक्शन निकालने के लिए आपको फंक्शन की डेफिनेशन पे जाना होगा। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि सेट ए के हर मेंबर की इमेज होनी चाहिए सेट बी में।
तो अगर मैं x1 की बात करता हूँ, x1 की बात है ना, तो x1 की इमेज होनी चाहिए तभी फंक्शन बनेगा। अब x1 के लिए इमेज के लिए कितने ऑप्शन है? 5 हैं, y1 y2 y3 y4 एंड y5। ओके, तो x2 के लिए कितने हैं? x2 के लिए भी 5 हैं। इट इज समवॉट बेस्ड ऑन PNC मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। x1 हैज़ 5 ऑप्शंस फॉर मैपिंग, x2 अगेन हैज़ 5 ऑप्शंस। x2 की इमेज y1 हो सकती है, y2 y3 y4 y5। x3 के 5 ऑप्शन है, x4 के 5 ऑप्शन है, एवरी टाइम 5 ऑप्शंस। तो इसीलिए सबसे पहले आप जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना कि ऑन टू निकालो, इन टू निकालो, तो पहले टोटल फंक्शंस निकाल लेना। तो वो आ गए आपके पास 5 टू द पावर 4। अब अब मान लीजिए मुझे टोटल 1 फंक्शन निकालने हैं। मैं ए से बी की बात कर रहा हूँ, तो टोटल 1 फंक्शन के लिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 120 फंक्शन। अब बोलोगे ये कैसे आया? तो सुनिए, 1 फंक्शन का मतलब होता है एक एक्स के लिए एक ही वाई। इसका मतलब अगर मैं अब x1 के लिए इमेज देख रहा हूँ तो मेरे पास 5 ऑप्शन है, लेकिन जब मैं x2 के लिए देखूंगा ना तो मेरे पास 4 ही ऑप्शन होंगे, क्योंकि जो x1 की इमेज बन चुकी है अब वो x2 की इमेज नहीं बन सकती, इसलिए एक एक कम होता जाएगा। तो x1 के लिए 5 ऑप्शन है, x2 के लिए 4 हैं, x3 के लिए 3 हैं और x2 के लिए 2 बचे, x4 के लिए 2 बचे। इस तरह से 120 आ जाएगा। इसमें जो पार्ट नहीं दे रखा है वो ये है, जो मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ इसका आंसर कोई बता सकता है मुझे? टोटल मैनी वन फंक्शन कितने होंगे यहाँ पर? पूछा तो नहीं है पर कोई बता सकता है कि यहाँ पे हाउ मैनी वन फंक्शंस विल बी हियर फ्रॉम ए टू बी? So 625 minus 120. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये 505 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो ही तरह के फंक्शन होते हैं। अगर फंक्शन है तो कैटेगरी ए में या तो 1 होगा या मैनी वन होगा, और कैटेगरी बी में या तो ऑन टू होगा या इन टू होगा। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अगर टोटल फंक्शन निकाल लोगे तो 1 निकाल लिया तो ऑटोमेटिकली मैनी वन आ जाएगा, ऑन टू निकाल लोगे तो ऑटोमेटिकली इन टू आ जाएंगे। ठीक है, अब आखिरी सवाल, ऑन टू फंक्शन। कौन बताएगा इस सवाल में कि टोटल ऑन टू फंक्शन कितने? ऑन टू अगर जानते हो ना तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे दोगे। अगर कोई स्क्रीन पे देख रहा है और ऑन टू फंक्शन उसको पता है तो आंसर आ जाएगा, जल्दी बताओ। ये लो मैंने आंसर लिख दिया 0, बताओ क्यों? So because codomain will be bigger than this, the range. यस ऑब्वियसली, क्योंकि देखो आपको एक बात पता है कि एक मेंबर की ना एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। x1 की एक ही इमेज हो सकती है, ऐसा तो है नहीं कि x1 की मैपिंग y1 से भी कर दूं और y2 से भी, क्योंकि यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में 4 एलिमेंट्स हैं, तो राइट साइड के कितने ऑक्यूपाई हो पाएंगे इमेज में? 4 हो पाएंगे। इसका मतलब एक हमेशा बचा रहेगा, एक हमेशा बचा रहेगा। तो क्या रेंज और कोडोमेन सेम होंगे? कभी नहीं होंगे। ऑन टू फंक्शन आ गए तो बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि इन टू फंक्शन कितने आएंगे। इन टू फंक्शन आ जाएंगे 625, क्योंकि टोटल में से घटा दोगे ऑन टू तो बचेंगे इन टू, ये मतलब होता है। अब इस पार्ट में किसी क्वेश्चन में दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। Any doubt in this part, in this question? Any doubt? तो देखिए हमने DPP 12 तक कंप्लीट डिस्कस कर ली हैं और हमारा चैप्टर भी ऑलमोस्ट एंड होने पर है। अब बचता है इसमें बस फंक्शनल इक्वेशन और कॉम्पोजिट फंक्शन। मैक्सिमम 2 क्लासेस एंड दिस विल बी ओवर। ओके, तो आज तो कोई आपको DPP शेयर नहीं होगी बिकॉज आई हैव नॉट टॉट यू एनीथिंग न्यू। टुमारो विल बी शेयरिंग द DPPs। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी बस। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.